Yes. So last time we solved example number 36. Now let's move to example 37. So let's try to understand the instruction first. So the question is like this. The following information was obtained from a distribution for which arithmetic mean is 56.8, median value is 59.5, and standard deviation is 12.4. Then give the information about the skewness of the distribution. So here we are going to calculate skewness. Now skewness means what? Skewness means we are going to derive whether it is positively skewed or negatively skewed. ये दोनों में से कौन सा बिहेवियर या कौन सा नेचर है, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हेन योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्क्यूनेस. अब स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने दो मेथड देखे थे. फर्स्ट वन वाज यूजिंग द पैरामीटर बीटा वन एंड सेकंड वन इज यूजिंग द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट. अब दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव इन द क्वेश्चन. सो by reading this instruction, can someone tell me which technique you will use? You will go with parameter beta 1 or you should go with Karl Pearson coefficient? Yes, can anyone tell me? Or let me ask someone. Dipen? Okay, Parthiv has already answered in chat box. So Dipen, તારા માટે આપણે બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન રાખશું હવે? Yes, so Parthiv has correctly answered. We will go with Karl Pearson coefficient. Why Karl Pearson coefficient? Because Karl Pearson coefficient SK is calculated using mean, median, mode. And here the data is in form of mean, median, and standard deviation. That's why we should go with Karl Pearson coefficient. Now, again, in Karl Pearson coefficient, we have two formula. First one is SK equal to mean minus mode divided by standard deviation. So if you want to use that formula, you should have information about mean, mode, and standard deviation. But as you can see in the question, we don't have any information about mode. So since mode is not available, we will go with the second version. Uska jo modified version tha, that we will use. So what was the second formula of SK? It is SK equal to 3 times into bracket mean minus median divided by standard deviation. और इस फॉर्मूला के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी क्वेश्चन में अवेलेबल है. सो इट्स अ जस्ट फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल. काफी छोटा सा क्वेश्चन है. इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सो हियर मीन इज 56.8, मीडियन इज 59.5 and standard deviation is 12.4. And this is the formula of SK, 3 times mean minus median divided by standard deviation. So SK will be 3 times. The mean value is 56.8 and median is 59.5 divided by 12.4. So here the answer is minus 0.65. Now by observing this value minus 0.65, can someone tell me about the nature of this distribution? Is it positively skewed or negatively skewed? I think ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस की थी in previous session. Yes, Nishtha says it is negatively skewed. Yes, it is correct answer. Why? Because it will depend on sign of SK. अगर SK positive है तो it will be positively skewed. If SK is negative, then it is negatively skewed. So since we have minus 0.65 here, we can conclude that this distribution is negatively skewed. So finally ये हमारा conclusion रहेगा that it is negatively skewed. So that's your question number 37. Now let's move to question number 38. Yes, so this is question 38. The instruction is very simple. Find the mean beta 1 and beta 2 for the following probability distribution. So we have a table here which represents probability distribution, जिसमें x के लिए हमारे पास 8 डेटा है और उन सब के लिए हमारे पास probability की वैल्यू है p of x. और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट वन इज मीन,
सेकंड इज बीटा 1 एंड थर्ड वन इज बीटा 2. अब मीन तो हम लोग बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत सारे एग्जांपल्स में. सो कैलकुलेटिंग मीन इज वेरी सिंपल. इट विल बी ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एक्स. बिकॉज मीन जो है वो अल्टीमेटली क्या है, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. तो मीन का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा समेशन एक्स इंटू पी एक्स. तो ये समेशन एक्स इंटू पी एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमको हर एक एक्स की वैल्यू को पी एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल कर देना है. तो 8 एक्स के वैल्यू है हमारे पास और 8 पी ऑफ एक्स के वैल्यू है. उनको वन बाय वन मल्टीप्लाई करके देन विल टेक दी टोटल लाइक दिस. सो 1 इंटू 0.008 वो पहली दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 इंटू 0.032 दूसरी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, एंड सो ऑन. सो फाइनली आफ्टर एडिंग देम द टोटल इज 4.903. तो 3 क्वेश्चन जो हमको पूछे गए थे, मीन, बीटा 1 एंड बीटा 2, उसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? 4.903. अब नेक्स्ट जो है दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2. तो सबसे पहले तो बीटा 1 और बीटा 2 जो है उनके फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं. यस, सो लेट्स आस्क समवन. संजना, प्लीज अनम्यूट योर माइक. Sanjana, am I audible to you? Sanjana, are you there? अच्छा, एक साथ कितने लोगों के माइक आज नॉट वर्किंग है? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. સંજના, તારા માટે હું કોઈ એવો ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે જેનો તું ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને આન્સર આપી શકે. સો લેટ્સ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન ટુ સમવન એલ્સ. નિષ્ઠા, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક. Yes, sir. Mu 3 Nishta, square what by was the... mu 2 cube. Correct. It is mu 3 square by mu 2 cube. Now, what is mu 3 and mu 2? Mu 3 is third central moment and mu 2 is second central moment. Similarly, बीटा 2 का जो फॉर्मूला है वो है mu 4 अपॉन mu 2 स्क्वायर. सो इस केस में भी हमको फोर्थ सेंट्रल मोमेंट और सेकंड सेंट्रल मोमेंट चाहिए. तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास mu 2, mu 3 एंड mu 4 ये 3 सेंट्रल मोमेंट्स हमारे पास होने चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है, इट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू पावर r. तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल मोमेंट म्यू r. अब मुझे अगर इसमें म्यू 1 चाहिए तो मुझे इसमें r इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा? 1. फिर म्यू 2 के लिए r इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. तो अगर मान लो मुझे म्यू 3 कैलकुलेट करना है तो ये मुझे क्या फॉर्मूला देगा? इट विल गिव मी x माइनस म्यू होल पावर 3. अब ये x माइनस म्यू पावर 3 जो है ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टेबल से? उसमें हमको ये करना पड़ेगा कि x के जो हमारे पास 8 वैल्यू हैं तो वन बाय वन हर एक वैल्यू में से हमको पहले म्यू माइनस करना पड़ेगा. म्यू मतलब ये वाली वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की 4.903. फिर हर एक वैल्यू में से वो माइनस करने के बाद उसका क्यूब करना पड़ेगा. देन क्यूब करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले x माइनस म्यू वो कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद उसका क्यूब करेंगे, देन विल मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, और वो जो भी मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे उनका हम फाइनली क्या करेंगे? टोटल, दैट मींस समेशन. तो इतना करने के बाद फाइनली हमारा म्यू 3 है वो कैलकुलेट होगा. सो देखकर ही लग रहा है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है. तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि हम रो मोमेंट्स कैलकुलेट करें अबाउट a इक्वल टू 0 और फिर रो मोमेंट को यूज करके हम सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट कर ले, क्योंकि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो तो हमारे पास अवेलेबल है. तो अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे फॉर a इक्वल टू 0. जनरल रो मोमेंट हम कैसे लिखते हैं? e ऑफ x माइनस a पावर r. बट क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? e ऑफ x पावर r. अब मुझे अगर इसमें म्यू 3 डैश कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली मुझे क्या करना है? म्यू 3 डैश इक्वल टू, इट इज समेशन, क्योंकि r का वैल्यू 3 है तो ये बन जाएगा x क्यूब
इंटू पी एक्स। तो a इक्वल टू 0 के लिए रो मोमेंट कैलकुलेट करना आसान हो जाए, क्योंकि उसमें x माइनस म्यू की जगह पे सिंपली हमको क्या मिलेगा, x। तो कैलकुलेशन वाइज अगर देखें, देन रो मोमेंट कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू सेंट्रल मोमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग a इक्वल टू 0 के लिए रो मोमेंट्स पहले कैलकुलेट करेंगे, एंड देन यूजिंग दोज रो मोमेंट्स हम सेंट्रल मोमेंट अपना बना लेंगे, और उसके बाद फाइनली हमको बीटा 1 और बीटा 2 के वैल्यू मिलेंगे। So for this example, to calculate central moments, it is more convenient if we calculate row moment about a equal to 0, that is mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash and mu4 dash, and then we use them to calculate central moment. बट ये चीज करने के लिए हमने जो फार्मूला देखा था इन प्रीवियस सेशन, द रिलेशन बिटवीन रो मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, वो रिलेशन पता होना चाहिए, जो आप सब लोगों ने अपनी बुक में नोट किया था। वो फॉर्मूला निकाल के रखो, आई विल आस्क एनीवन। तो सबसे पहला तो हमको कैलकुलेट करना है म्यू वन डैश। अब ये हमको पता है कि म्यू वन डैश जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू वन डैश मतलब फर्स्ट रो मोमेंट। तो ए इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट रो मोमेंट क्या बनेगा, इट विल बी समेशन एक्स पावर 1 दैट इज एक्स इंटू पी एक्स। बट ये समेशन एक्स इंटू पी एक्स जो है, ये तो एक्चुअली हमारा मीन का वैल्यू देगा, क्योंकि समेशन एक्स इंटू पी एक्स अल्टीमेटली क्या है, ई ऑफ एक्स। तो ये हमारा मीन का वैल्यू बनेगा, और मीन का वैल्यू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, और वो है 4.903। दैट मींस पहला रो मोमेंट जो है वो तो ऑलरेडी हमको मिल गया 4.903। अब उसके बाद कैलकुलेट करते हैं सेकंड रो मोमेंट, दैट इज म्यू टू डैश। तो म्यू टू डैश जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू टू डैश इज इक्वल टू, इट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर। तो सिंपली वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस केस में हमें एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 8x के वैल्यूज हैं, उन सारे वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे, देन विल मल्टीप्लाई विथ पी ऑफ एक्स, और उसके बाद हम उसका टोटल करेंगे। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू टू डैश, वो हमारी म्यू टू डैश की वैल्यू होगी। तो चलो देखते हैं क्या मिलती है म्यू टू डैश की वैल्यू। सो म्यू टू डैश विल बी दिस, म्यू टू डैश इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, सो 1 इंटू 0.008, 2 स्क्वायर विल बी 4, सो 4 इंटू 0.032 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 इंटू 0.142 एंड सो ऑन। तो 1 से लेके 64 तक, क्योंकि लास्ट में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो सारे वैल्यूज को हमने पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नाउ लेट्स टेक द टोटल। सो द टोटल इज दिस 26.125। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हमारा म्यू टू डैश। सिमिलरली इसी तरह से अगर म्यू थ्री डैश कैलकुलेट करना है तो वो कैसे मिलेगा, म्यू थ्री डैश विल बी ई ऑफ एक्स क्यूब। तो सेम यही प्रोसेस उसमें रिपीट होगा, बट स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यूब। जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, वो सारे क्यूब वैल्यूज को हम पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर उनका टोटल करेंगे। एंड सिमिलरली म्यू फोर डैश कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक ई ऑफ एक्स पावर 4। तो उस केस में हम सारे के सारे एक्स वैल्यू का 4 पावर करेंगे, देन विल मल्टीप्लाई विथ पी एक्स, एंड देन विल टेक दी टोटल। तो प्रोसेस कैसे करना है दैट इज क्लियर। तो अब आप लोग मुझे म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश कैलकुलेट करके दीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट, बट ट्राई टू गिव मी आंसर। म्यू थ्री डैश के लिए आपको क्यूब करके फिर पी एक्स से मल्टीप्लाई करके टोटल लेना है, एंड फॉर म्यू फोर डैश आपको 4 पावर करके फिर पी एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल। सो यूज पेन एंड पेपर, use calculator if you need, and tell me what is the value of mu3 dash and mu4 dash, and whatever answer you get, please comment in chat box.
Okay, so we got our first answer from Miloni. So Miloni says it is 243.045. Okay, we'll see that. Let's see what others are getting. Okay, only Miloni got the answer. What about others? Okay, Harshit also got answer for fourth one. So Harsh got 148.123. Okay. So Harsh, Kishan and Nista, they all got same answer. Henil also got same answer. So let's see what is answer of mu3 dash. Yes, so the answer is correct for mu3 dash. It is 148.12. Now let's see what you get for mu4 dash. Yes, has anyone got the answer for mu4 dash? Okay, Kishan got 880.885. Yes, Kishan, it looks correct.
Yes, Miloni also got same answer. So let's see what is the value of mu4 dash. So this is the value, and finally the total is 880.885. So this is the value of mu4 dash. So finally we calculated all the 4 row moments. ये चारों के चारों क्या है, रो मोमेंट्स हैं. अब इन चारों वैल्यू को यूज करके हमें सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करना है mu1 टू mu4. तो उसके लिए जो रिलेशन है दैट वी आर गोइंग टू यूज. लेट्स सी व्हाट वी हैव. सो फाइनली ये डेटा हमारे पास है. a इक्वल टू 0, पहला रो मोमेंट है mu1 डैश इक्वल टू 4.903, mu2 डैश इज 26.125, mu3 डैश इज 148.12 and mu4 dash is 880.885. Now let's try to calculate moments about mean, मतलब कि सेंट्रल मोमेंट. अब सेंट्रल मोमेंट के लिए एक सबसे अच्छी चीज ये है कि हमको पता है कि उसका फर्स्ट मोमेंट जो है mu1 वो ऑलवेज 0 रहेगा. तो फर्स्ट मोमेंट के लिए तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इट विल ऑलवेज बी 0. नाउ सेकंड सेंट्रल मोमेंट mu2. तो mu2, mu3, mu4 तीनों के हमने फॉर्मूला लिखे थे इन प्रीवियस सेशन. सो लेट मी आस्क समवन. Dirgha, please unmute your mic. Dirgha, am I audible to you? Yes. Dirgha, what was the formula of mu2? બુક માંથી જોઈને કહેશે તોય ચાલશે. નોટ કર્યું હતું ને બુકમાં કે નથી કર્યું? Mu r dash plus sigma I equal to 1 to r. Is that? એ તો જનરલ ફોર્મ્યુલા થયું ને. હું તને પૂછું છું કે mu2 માટે શું થશે? r equal to 2 મૂકીએ આપણે તો mu2 શું આવે? એ આપણે mu2 equal to હા બોલજો. mu2 dash minus rc2. rc2 નહીં તો પછી આ 2 minus થઈ જાય 2c2. હા 2c2. એ કેસમાં mu1 આપણે dash whole dash. સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મ જે છે ને એ લખવાનું. આપણે જો સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મ એનું આવું લખેલું, mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. mu1 dash. Oh. So value of mu2 dash is 26.125 and mu1 dash is 4.903. So after simplification, the answer is 2.086. This is the value of mu2. Now similarly, we need formula of mu3. Let's ask someone else. Jay, please unmute your mic. Jay. Yes, sir. Jay, શું હતું mu3 નું ફોર્મ્યુલા? I didn't remember, sir. આપણે તો યાદ ક્યાં રાખવાનું હતું? આપણે તો બુકમાં લખવાનું હતું ને તારે મને કહેવાનું હતું. એમ તો ફોર્મ્યુલા લાંબા છે એટલે એમ ઇઝીલી યાદ પણ ન રહે. તો આપણે બુકમાં લખ્યા નહોતા લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે 2 મિનિટનો ટાઈમ આપતો હતો લખવા માટે? લખતા હતા ને. તો પછી આપણે જોઈને જ બોલવાનું છે એમાંથી. તારી બુકમાં જે mu3 નું ફોર્મ્યુલા છે જોઈને એકવાર બોલી દે શું હતું. Okay, Sanjana says her mic is working now, so she wants to answer. તો જો જય આન્સર ના આપે તો આપણે સંજનાને કહેશું આન્સર આપે. પછી જયને એ આન્સર યાદ રાખવાનો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જય ફરી પાછો એનો આન્સર દેશે. Yes, Sanjana, you can answer now. mu3 dash is equal to mu3 plus 3 mu1 mu2 minus mu1 સંજના આ તે બીજું ફોર્મ્યુલા બોલે છે, mu3 ડેશ નું બોલે છે. આપણે mu3 નું જોઈએ છે. mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu1 dash mu2 dash plus 2 mu3 dash cube mu1 dash cube. Correct. So this is the formula of mu3. And again, all three values are available with us.
So by substituting these values, the answer is -0.42. तो μ3 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है इसमें, -0.42. अब इसके बाद हमको चाहिए μ4. So let me give you that formula. μ4 is this, μ4 dash minus 4 times μ3 dash into μ1 dash plus 6 times μ2 dash into μ1 dash whole square minus 3 times μ1 dash power 4. Again, by substituting all the values, the answer is 10.39. तो ये चारों वैल्यू हमको मिल रही है सेंट्रल मोमेंट के लिए, μ1, μ2, μ3 and μ4. Now, since we have all these values available with us, now we can easily calculate beta 1 and beta 2. So let's see what is beta 1 first. So the formula of beta 1 is μ3 square divided by μ2 cube. So it is -0.42 square divided by 2.086 cube. And by simplifying this, your answer is 0.019. Okay, by observing this value, can someone tell me nature about this distribution? ये positively skewed है या negatively skewed, कोई बता पाएगा? क्या लगता है ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड? You can also comment your answer in chat box if your mic is not working. Okay, so Miloni says negatively skewed. Okay. Anyone else? Yes, so this answer negatively skewed is correct. Why it is correct? Because positively skewed or negatively skewed will depend on value of μ3. See, remember this thing, it will not depend on value of beta 1. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? μ3 के वैल्यू के ऊपर. And since μ3 is equal to -0.42, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, that's why it is negatively skewed. So this distribution is negatively skewed. Similarly, now let's calculate beta 2. Beta 2 का फॉर्मूला है μ4 divided by μ2 square. So it is 10.39 divided by 2.086. So उसके लिए आंसर है 2.39. अब ये बीटा 2 के वैल्यू के ऊपर से हमको ये पता चल सकता है कि हमारा जो कर्व है वो किस टाइप का है. किस टाइप का मतलब प्लेटिकोर्टिक है, मेसोकोर्टिक है, तीनों में से कोई भी टाइप. तो अभी बीटा 2 का वैल्यू आपके स्क्रीन के ऊपर है. So by observing this value, tell me what is type of your distribution curve here. So Henil says it is platycortic. Miloni says leptocortic. Why we have different answers here? Someone says leptocortic, someone says platycortic. Yeah, so platycortic is correct answer because here beta 2 value is less than 3, so it is platycortic. So finally, this is the answer of question number 38. So in question 38, we calculated three things: mean, beta 1 and beta 2. Now in next question, again यही तीनों चीज हम लोग calculate करेंगे, but this time it will be continuous random variable. इस केस में वेरिएबल कौन सा था? Discrete. Now let's do the same thing for continuous. देखते हैं continuous में ये तीनों चीजें कैसे calculate होंगी. So that's your question number 39. Find the value of mean, beta 1 and beta 2 for the following distribution, where fx is equal to density function जो है वो हमको दिया गया है 1/2 x square into e power minus x, where x belongs to 0 to infinity. इसका मतलब fx का जो ये वैल्यू हमको लेना है 1/2 x square into e power minus x, it is only valid when your x lies between 0 to infinity. That means minus infinity to 0 के लिए by default fx का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 0. तो चलो सबसे पहले हमको
ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास चारों सेंट्रल मोमेंट होने चाहिए, μ1 μ2 μ3 एंड μ4। तो इस केस में भी हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, बिकॉज इसमें भी रो मोमेंट कैलकुलेट करना काफी आसान रहेगा। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट दी रो मोमेंट एंड देन उसको यूज करके हम लोग सेंट्रल मोमेंट निकाल लेंगे। सो अगेन हियर इट इज कन्वीनियंट टू कैलकुलेट रो मोमेंट फर्स्ट एंड देन विल यूज देम टू कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट। बट हियर दिस इज क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इस केस में हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है। पिछले एग्जांपल में क्या था, वहां पर हमारे पास टेबल था। तो उस केस में हम लोगों ने μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश वो 1 by 1 सेपरेटली कैलकुलेट किए थे। बट व्हेनेवर इट इज केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसमें सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन तो हम जनरल फॉर्म में भी कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू को बिना सब्स्टिट्यूट किए उसको जनरल फॉर्म में ही सॉल्व कर देंगे, ताकि हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा जनरल रो मोमेंट मिलेगा। फिर वो जनरल फॉर्मूला में आर की अलग अलग वैल्यू डाल के μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश सारे वैल्यू हमको इजीली मिल जाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली μr डैश निकालेंगे। वी वोंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर। अभी हम आर का कोई वैल्यू नहीं डालेंगे इसमें। तो μr डैश एक्चुअली क्या हो जाएगा, इट विल बी expected value of x power r. Now as per the definition it will be integration 0 to infinity x power r into fx dx. अब क्यों इसमें लिमिट 0 to infinity है, because function is only available between 0 to infinity. Minus infinite to 0 में function value by default 0 रहेगी, that's why we are not considering it here. अब fx का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगा x पावर r into 1/2 x square into e power minus x dx. Now 1/2 is constant, और x की पावर को अगर सिंप्लीफाई करें then your integration will be this 1/2 integration 0 to infinity x का पावर अभी हो जाएगा r plus 2 into e power minus x dx. अब इसमें e power minus x है, x का पावर r plus 2 है, and the limit is 0 to infinity. Now this is not easy integration to solve, but अगर याद करो ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इज वेरी फेमस एंड पॉपुलर इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड गामा फंक्शन। आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड गामा फंक्शन मे बी इन 11th 12th और मे बी इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। बट अगर फिर भी किसी को याद ना हो, लेट्स रिकॉल वन मोर टाइम। गामा n+1 जो है उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, गामा n+1 इज इक्वल टू, उसमें इंटीग्रेशन रहेगा जिसका लिमिट होगा 0 to infinity, then we have x power n into e power minus x dx. सो अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरह का है जिसमें लिमिट है 0 to infinity, जिसमें e पावर माइनस एक्स भी होना चाहिए और x की कोई पावर होनी चाहिए, then this kind of integration is called gamma function. तो गामा फंक्शन के दो नोटेशन है, या तो गामा फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे गामा n+1, या फिर उसका एक और नोटेशन भी है, दिस इज गामा ऑफ n+1। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे मिलेगी, गामा n+1 जो है, गामा n+1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। दैट मींस ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 to infinity x पावर n into e पावर माइनस x, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली n फैक्टोरियल। तो इस केस में ये जो x है इसकी जो भी पावर है वही पावर यहां पर आपको फैक्टोरियल में मिलेगी, n फैक्टोरियल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। सो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो हम इस इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। लेट मी गिव यू दैट फॉर्मूला हियर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। गामा n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e power minus x into x power n dx, and that is given as n factorial. So using this formula, can someone tell me what I can write for this integration? Because what you need to do, you need to compare both the integration. As you can see, they both have same limit 0 to infinity, both have e power minus x, and x power is r plus 2 here, and in the formula we have x power n. So if you compare these two integrations, R plus 2 factorial. correct, it will be r plus 2 factorial, and again 1/2 will be there क्योंकि 1/2 अलग से हमारे पास है. So it will give you 1/2 into gamma r plus 3, which is actually 1/2 into r plus 2 factorial.
So finally, the row moment mu r dash is given by 1 by 2 into r plus 2 factorial. अब एक बार ये फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब अभी हमको सिर्फ r का वैल्यू डालना है, तो हमको mu1, mu2, mu3, mu4 ये चारों वैल्यू मिल जाएंगे. So let's see what we have. So mu r dash is this one, 1 by 2 into r plus 2 factorial. अब अगर मुझे mu1 dash चाहिए तो मुझे इसमें r equal to क्या लेना पड़ेगा? 1. So my mu1 dash will be 1 by 2 into 1 plus 2 factorial, that is 3. Similarly, mu2 dash will be 1 by 2 into 2 plus 2 factorial. So that is 4 factorial divided by 2, which will be 12. And mu3 dash is 5 factorial by 2, which is 60. And mu4 dash is 6 factorial by 2, which is 360. So finally, by solving only single integration, we have all the 4 values of row moment. But ये तो सिर्फ रो मोमेंट है. बीटा 1 बीटा 2 के लिए हमको तो क्या चाहिए? सेंट्रल मोमेंट. तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यूजिंग दैट रिलेशन विल ट्राई टू कन्वर्ट रो मोमेंट्स टू सेंट्रल मोमेंट. तो अगेन सबसे पहले mu1 जो है that will be by default 0 because first central moment is always 0. Then mu2, the formula of mu2 is mu2 dash minus mu1 dash whole square. So again mu2 dash का value हमारे पास क्या है? 12 and mu1 dash is 3. So by simplifying your answer is 3. Now this is the formula of mu3. It is mu3 dash minus 3 times mu2 dash into mu1 dash plus 2 times mu1 dash whole cube. So let's substitute the values now. By substituting the values, your answer is 6. And finally, the last one, mu4. So again, we have this formula. Let's substitute the values. And finally, after simplification, the value of mu4 is 45. So now we have all the 4 values of central moment. अब इन चारों वैल्यूज को यूज करके लेट्स कैलकुलेट मीन बीटा 1 एंड बीटा 2. बट मीन जो है हमको पता है कि मीन जो है वो क्या रहेगा? इट विल बी दी फर्स्ट रो मोमेंट mu1 डैश. तो फर्स्ट जो रो मोमेंट है mu1 डैश वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है. तो ये जो वैल्यू है यही हमारे म्यू का वैल्यू रहेगा, मतलब कि मीन का वैल्यू. सो फाइनली मीन का वैल्यू तो हमको डायरेक्टली अवेलेबल रहेगा, दैट विल बी 3. सो मीन का वैल्यू हमको मिल गया. नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट beta 1 and beta 2. So beta 1, again the formula is mu3 square divided by mu2 cube is equal to, it will be now 6 square divided by 3 cube. So here the answer is 1.333. Now again, by observing this value, can someone tell me the nature of this distribution? Nature मतलब positively skewed है या negatively skewed? क्या लग रहा है आपको इसमें? Positively skewed. Yes, it is positively skewed. Why it is positively skewed? Because the value of mu3 is positive. Because mu3 का value क्या है इसमें? 6. That's why it is positively skewed. Similarly, now let's calculate the value of beta 2. So beta 2 is mu4 divided by mu2 square. So mu4 is 45. Mu2 square is 9. So finally the value is 5. Now again, here the beta 2 is 5, which is greater than 3. So what should be the type of curve here? Platychotic, mesochotic, leptochotic? Yes, correct. It is leptochotic. वैसे इसमें क्वेश्चन में कहीं हमको ये पूछा नहीं गया था कि आप टाइप बताओ, बट अगर कभी ये चीज भी एडिशनल होती है that what is the type of the curve, then by using the value of beta 2 we can conclude. So this is the example number 39. So this way we can calculate beta 1, beta 2 mean for continuous random variable. So that's it from the examples of PPT. इतनी example हमको करने थे. Now after this I will share one exercise with you. There will be 3 examples in that exercise. और वो तीनों एग्जाम्पल जो है अभी हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए आज के सेशन में, उन्हीं के बेस्ड या उनके जैसे ही रहेंगे. तो तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझो, सॉल्व करो, और जो भी आंसर मिले कमेंट इन चैट बॉक्स. अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, देन प्लीज आस्क मी, विल डिस्कस द सॉल्यूशन. सो लेट मी शेयर द एक्सरसाइज विथ यू.
Yes, the exercise is on your screen. And let me share the same exercise in your WhatsApp group also. तो अगर किसी का कनेक्शन अगर चला भी जाता है, they can see the questions from WhatsApp group. तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझो, सॉल्व करो एंड कमेंट योर आंसर इन चैट बॉक्स. सी अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको लगे कि इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, देन प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन.